7 سالہ بچی کے قتل اور زیادتی کا ملزم گرفتار۔ ڈچ کورٹ میں ملزم منیر علی نے بچی کو جھاڑیوں میں لے جا کر قتل کیا، موت کے گھاٹ اتار کر زیادتی کی۔ ملزم کا اس سے قبل بھی ایک 5 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کا اعتراف۔ مقتولہ کی والدہ کا ملزم کو سخت اور عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ۔ کورٹ میں 7 سالہ بچی کے ساتھ قتل کے بعد زیادتی۔ ملزم منیر علی نے اعتراف کیا کہ وہ بچی کو بسکٹ کھلا کر جھاڑیوں میں لے گیا، گلا گھونٹ کر قتل کیا اور زیادتی کی۔ ملزم نے اس سے قبل کنجوانی میں بھی ایک کم سن بچی سے زیادتی کی کوشش کی تھی۔ قتل اور زیادتی کا شکار ہونے والی بچی کی والدہ نے اشک بار آنکھوں سے وزیر اعلیٰ اور فیصل آباد پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ مقتول بچی کی والدہ بولی، ملزم نے پھول جیسی معصوم بچی پر ظلم کی انتہا کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے ملزم کو گرفتار کرنے کا وعدہ پورا کر دیا۔ ملزم کو سرعام سزا دے کر نشان عبرت بنایا جائے۔ بچی 7 سال چھوٹی سی بچی، انہوں نے بڑا ظلم کیتا ہے۔ ایسے انہوں انی سزا دینی نہیں تو تیل سٹ کے انہوں آگ لگانی۔ انہوں ظلم بڑا کیتا ہے۔ اعتراف جرم کے وقت ملزم منیر علی کے چہرے پر شرمندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں گزشتہ سال کی نسبت جرائم میں ہوشربا اضافہ، اسٹریٹ کرائم 40% بڑھ گئے۔ سٹی 41 نے ٹاپ 10 تھانوں کی فہرست حاصل کر لی۔ کوٹ کے علاقے 12 میں ایک ماہ قبل 7 سالہ بچی مہک فاطمہ کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا گرفتار۔ ننیال میں آئے کنجوانی کے منیر نے بچی کو جھاڑیوں میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ سی پی او فیصل آباد محمد علی ضیاء نے ایس پی انویسٹیگیشن محمد اجمل اور ایس پی عثمان سیفی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سی پی او نے بتایا کہ مہک کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ اور آئی جی روزانہ اپ ڈیٹ لیتے رہے۔ وزیر اعلیٰ نے بچی کے گھر جا کر انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ گاؤں میں ملزم کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ ایس پی اقبال ڈویژن نے کیس پر انتھک محنت کی۔ پورا اظہار افسوس جو عمران میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے کرنا چاہوں گا، جو پہلے بھی ان کے گھر جا کے بھی ہم کرتے رہے۔ نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم ان کے دل کو یہ تسلی رہے گی کہ ان کا جو اصل ملزم ہے وہ آج قانون کی گرفت میں ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت مضبوط اس میں کیس بنائیں گے اور حتی الوسع کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو سخت سے سخت سزا ہو۔ مہک فاطمہ کے والد عمران نے گھر آنے پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ بچی کے ساتھ ظلم کرنے والے کو کڑی سزا دلانے کی اپیل کی۔ جلد جلد اسے سزا مل جاوے اور ملے اوتھے کتھے میری بچی نال ظلم کیتا ہے جی، اور دے ایتھے نہیں جی، اوتھے میرے پنڈ جی ساری دنیا ویکھے، پنڈ والے دیکھیں جی اتنا ظلم کیتا ہے جو اور کوئی بچہ اے بچی ہے جی بچے نال ظلم نہ کرے جی۔ پولیس حکام کے مطابق 200 سے زائد افراد کو شامل تفتیش کر کے پولی گرافک ٹیسٹ کروایا گیا۔ ملزم منیر کا ڈی این اے مقتولہ بچی مہک سے حاصل کیے گئے نمونے سے میچ کر گیا ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں گزشتہ سال کی نسبت جرائم میں ہوشربا اضافہ، اسٹریٹ کرائم 40% بڑھ گئے۔ سٹی 41 نے ٹاپ 10 تھانوں کی فہرست حاصل کر لی۔ فیصل آباد میں جرائم کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ، گزشتہ سال کی نسبت اسٹریٹ کرائم 40% بڑھ گئے۔ جرائم کے حوالے سے 44 میں سے ٹاپ 10 تھانوں کی فہرست سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن رواں سال درج ہونے والے 3404 مقدمات کے ساتھ فیصل آباد بھر میں سر فہرست ہے۔ تھانہ صدر 3371 مقدمات کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ غلام محمد آباد 3069 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ سرگودا روڈ 2973 کے ساتھ چوتھے اور ملت ٹاؤن 2849 مقدمات کے ساتھ 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ پیپلز کالونی میں 2699 مقدمات، بٹالہ کالونی میں 2294 مقدمات درج ہوئے۔ کھڑیا والا 2278 مقدمات کے ساتھ 8ویں، ٹھیکری والا 2213 کے ساتھ 9ویں نمبر پر ہے۔ تھانہ رضا آباد 2059 مقدمات کے ساتھ فیصل آباد کے تھانوں میں 10ویں نمبر پر ہے۔ شہر میں ڈاکوؤں کا راج جاری ہے، جبکہ شہری بے یار و مددگار ہے۔ فیصل آباد کو ڈکیت گروہوں، اسٹریٹ کریمنلز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈینگی مچھر کے وار، فیصل آباد والے شکار، 24 گھنٹے میں 8 نئے مریض رپورٹ۔ رواں سال ڈینگی متاثرین کی تعداد 619 ہو گئی۔ دوسری جانب کونگو وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے پیش نظر محکمہ لائف سٹاک نے مویشی منڈیوں اور راستوں پر سپرے کو لازم قرار دے دیا۔ ڈینگی مچھر کے وار، فیصل آباد والے شکار، 24 گھنٹے میں 8 نئے مریض رپورٹ۔ رواں سال ڈینگی متاثرین کی تعداد 619 ہو گئی۔ فیصل آباد کے مختلف ہاسپٹل میں 23 مریض زیر علاج، الائڈ ہاسپٹل 1 میں 17، 2 میں 6 مریضوں کا علاج جاری۔ رواں سال ایک مریض ڈینگی سے جہاں بخت بھی ہو چکا۔ کونگو وائرس کا ممکنہ پھیلاؤ، محکمہ لائف سٹاک نے سپرے کی ہدایات جاری کر دی۔ فیصل آباد کی مویشی منڈیوں اور راستوں پر موجود جانوروں پر سپرے کیے جائیں گے۔ مویشی منڈی کے اندر موجود جانوروں پر بھی سپرے کا حکم۔ محکمہ لائف سٹاک کے مطابق ماڈل مویشی منڈی نیا موانہ میں جانوروں پر سپرے کیا جا رہا ہے۔ سی ای او تاثیر احمد کہتے ہیں کمپنی کے ویٹنری ڈاکٹرز کونگو وائرس سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔
महकमा लाइवस्टॉक फैसलाबाद की अदम दिलचस्पी, वेटनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स खस्ता हाल, जिला के 28 वेटनरी हॉस्पिटल की तामीर और मुरम्मत के काम इल्तिवा का शिकार। महकमा लाइवस्टॉक फैसलाबाद की अदम तवज्जो वेटनरी हॉस्पिटल की खस्ता हाल बिल्डिंग भूत भंगले का मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद जिला के 28 वेटनरी हॉस्पिटल की तामीर और मुरम्मत के काम इल्तिवा का शिकार। वेटनरी हॉस्पिटल की तामीर और मुरम्मत के लिए अभी तक फंड्स जारी न किए जा सके। सिविल वेटनरी हॉस्पिटल फैसलाबाद की बिल्डिंग तरक्याती कामों की मुंतजर। सिविल वेटनरी हॉस्पिटल 217 रेबे की बिल्डिंग भी खस्ता हाली का शिकार। रिचकोट ठीकीवाला की सिविल डिस्पेंसरी की इमारत की भी तामीर और मुरम्मत न हो सकी। NA 106 के 8 वेटनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स भी टूट फूट का शिकार। NA 105 के 5 वेटनरी हॉस्पिटल को भी फंड्स जारी न हो सके। NA 101 के 3, NA 102 के 3, समुंदरी के 1 वेटनरी हॉस्पिटल की तामीर और मुरम्मत होनी है। चकझुमरा के 6 वेटनरी हॉस्पिटल भी महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की तवज्जो हासिल न कर सके। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंसदाद मंशियात की कार्रवाई, तंजानिया के शहरी के पेट से मंशियात के कैप्सूल बरामद। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस ने मंशियात फरोशी की कोशिश नाकाम बना दी। 7 करोड़ से ज्यादा मालियत की हेरोइन बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई, दुबई से आने वाली फ्लाई दुबई की परवाज से गैर मुल्की मनशियात स्मगलर गिरफ्तार कर लिया। तंजानिया के काजिम हसन के ANF ने तलाशी ली। एक्सरे स्कैनर से पेट में कैप्सूल की निशानदेही हुई। मुलजिम को ANF स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। काजिम हसन कारोबारी वीजे पर 30 रोज के लिए पाकिस्तान आया था। मोटरवे पुलिस की मनशियात फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ से ज्यादा मालियत की हेरोइन बरामद, मुलजिमान गिरफ्तार। मोटरवे पुलिस ने ANF फैसलाबाद की इतला पर कार्रवाई की। मुलजिमान ने गाड़ी छोड़कर भागने की कोशिश की, पुलिस ने नाकाम बना दी। मुलजिमान में आजातुम खान और सिद्दीक अकबर शामिल हैं। फैसलाबाद में मुनशियात केस के मुजरिम को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। थाना डचकोट पुलिस ने नवंबर 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। मुजरिम के कब्जे से 12.5 किलो चरस बरामद की गई थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेल्स टैक्स चोर खाद डीलर्स के खिलाफ इनेक्शन, 300 से ज्यादा डीलर्स को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स चोरी पर शोकोज नोटिस जारी। सेल्स टैक्स चोरी करने वाले ज़रूरी खादों के डीलर्स के खिलाफ मुस्तरक हो गया। 300 से ज्यादा डीलरों को सेल्स टैक्स चोरी करने पर शोकेस नोटिस जारी कर दिए गए। FBR हकाम के मुताबिक फर्टिलाइजर डीलरों ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा सेल्स टैक्स चोरी किए। FBR हकाम के मुताबिक खरीदारों से सेल्स टैक्स वसूल के बावजूद कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया जा रहा था। कारखानों से फर्टिलाइजर डीलरों की तफसीलात हासिल की गई, जिसकी रोशनी में फर्टिलाइजर्स डीलरों के कारोबार और टैक्स अदायगियों का जायजा लिया गया, जिससे टैक्स चोरों का सुराग मिल गया। FBR हकाम का कहना है कि नोटिस की अदम तमील पर यकतरफा फैसला होंगे। टैक्स और जुर्मानों के साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, चाइना कटिंग और हाउसिंग सोसाइटीज ग़ज़ाई किल्लत का सबब बनने लगी। ज़रूरी रकबे पर तामीरात से बड़े ग़ज़ाई बहरान का खदशा। चाइना कटिंग और हाउसिंग सोसाइटीज ने ज़राअत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। महकमा ज़राअत के मुताबिक चिन्योट में 5 साल के दौरान 50,000 एकड़ रकबा पर गंदम की काश्त कम हुई। साल 2016-17 में 2,88,000, 2018-19 में 2,83,000, जबकि 19-20 में 2,75,000 एकड़ रकबा पर गंदम काश्त हुई। महकमा ज़राअत के मुताबिक 2021-22 में 2,53,000 और इस साल 2,43,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त हुई। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद कहते हैं, हम ज्यादा पैदावार पर फोकस कर रहे हैं। पहले फी एकड़ 30 मन पैदावार होती थी, अब 35 मन एवरेज पैदावार है। काश्तकारों का कहना है इस संगीन सूरत हाल के बायस आने वाले दिनों में ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने का इम्कान है। फैसलाबाद में फैशन इंडस्ट्री और विमेन एम्पावरमेंट से वाबस्ता खवातीन की मीटिंग, सैयदा रबाब ज़हरा, ज़ैनब सकलैन, सना सलमान समेत दीगर ने शिरकत की। नवंबर के आखिर में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात के हवाले से तबादला ख्याल किया। मज़ीद जान लेते हैं अहमद साथ से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैशन इंडस्ट्री के हवाले से और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एंटरप्रेन्योर के हवाले से आज जो है वो मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम जो फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता जो खवातीन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी जानिब से जो है वो शिरकत की गई, उसमें बातचीत की गई। इसी हवाले से हमारे पास यहाँ पे जो है वो फैशन इंडस्ट्री का एक नाम है रुबाब ज़हरा, वो मौजूद है। अच्छा ये बताइएगा, एक आप ये कह रही थी कि आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने, एक वफ्त आपका मिलने जा रहा है। दूसरी जानिब ये बताइएगा किन मुश्किलात का सामना होता है। फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियलिस्ट सिटी है, एक सनती शहर है, तो इधर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना काम हो रहा है और कितना मुश्किलात का शिकार है इस टाइम? जी, एक तो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करनी है कि आप जब तक हैं यहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म, तब तक कुछ आप अच्छा माली भी कर जाएं। हमारे पास भी कहने को हो कि एक वज़ीर आज़म आया था और फैसलाबाद की एंटरप्रेन्योर जो औरतें हैं उनके लिए कोई काम कर गया था। पूरी दुनिया में
कनाडा में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में, इवन सिंगापुर में जो न्यू वुमेन एंटरप्रेन्योर बिजनेस वुमेन्स हैं, सबके लिए बहुत फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं। हमारे लिए पाकिस्तान में रहते हुए एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। हम मुल्क को तरक्की करना देखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं आप फैसलाबाद आएँ, हमें एड्रेस करें, हम सब औरतों की प्रॉब्लम सुने। हमारे पास प्लान है ताकि आप मतलब हुकूमत के साथ मिलके हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सकें। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मीटिंग में तमाम जो इधर वुमेन इंडस्ट्री से मुल्हिका जो तमाम यहाँ पे जो वुमेन एम्पावरमेंट के वाले से बात की गई और जिन्होंने शिरकत की उनका ये मुतालबा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ का जो है वो दौरा करें, क्योंकि काफ़ी सरमायाकारी जो है वो फैसलाबाद से जाती है, एक सनती शहर है तो इधर से काफ़ी सरमायाकारी जाती है, लेकिन इस टाइम जो हालात हैं वो ना होने के बराबर है, कारोबार बिल्कुल जो है वो ठप होकर रह गए हैं। इस हवाले से आज जो है वो मीटिंग में बातचीत की गई जिसमें तमाम फैशन इंडस्ट्री और वुमेन एम्पावरमेंट अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एसएचओ थाना गुलाम मोहम्मदाबाद अली इकराम गुराया की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एसएचओ थाना गुलाम मोहम्मदाबाद अली इकराम गुराया की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 3 हफ्ते कबल सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले 2 डाकू अली गुराया ने गिरफ्तार कर लिए। गुलाम आबाद में 2 डाकुओं ने फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड कलीम को गोलियां मारकर कत्ल किया था। सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का मुकदमा नामालूम डाकुओं के खिलाफ दर्ज हुआ था। एएसपी गुलबर्ग अवैस खान ने डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी थी। गिरफ्तार होने वाले डाकू गफ्फार और अनीस शजद जीबेद के रहायशी निकले। दोनों डाकू थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के ही डकैती मुकदमात के रिकॉर्ड याफ्ता हैं। एसएचओ गुलाम आबाद अली इकराम गुराया ने डाकुओं के खिलाफ मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। एएसपी गुलबर्ग अवैस खान ने अली इकराम गुराया और टीम को शाबाश दी। पाकिस्तानी बरामदात आलमी मंडी में जगह बनाने लगी। बरतानिया, जर्मनी, इटली, स्पेन और दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट बढ़ने लगी। सनतकारों ने बरामदात बढ़ाने का नुस्खा वैल्यू एडिशन को करार दिया। ताजिर कहते हैं वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देकर टेक्सटाइल बरामदात दुगना की जा सकती हैं। पाकिस्तान अपनी रवायती मंडियों से बरामदी हिस्सा वापस लेने लगा। बरतानिया, जर्मनी, इटली, स्पेन के लिए पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात बढ़ गईं। चीन के लिए पाकिस्तानी बरामदात 58% बढ़कर $321 मिलियन हो गई। बरतानिया में 14% इजाफा से $172 मिलियन पर पहुंच गई। जर्मनी के लिए बरामदात 13% इजाफे से $140 मिलियन रिकॉर्ड। स्पेन में 2% इजाफे से $119 मिलियन। मलेशिया में 150% इजाफे से $75 मिलियन रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब सनतकार कहते हैं बरामदात बढ़ाने का वाहिद हल वैल्यू एडिशन सेक्टर में है। डिप्टी सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिलाल शरीफ कहते हैं वैल्यू एडिशन पर काम करके हम अपनी टेक्सटाइल बरामदात दोगुना कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की जैसे कंट्री है, इसको चाहिए कि कुछ ना कुछ उसमें चेंज करे, कुछ वैल्यू एडिशन करे। वैल्यू एडिशन के लिए चाहिए मेहनत, मेहनत के लिए चाहिए काबिलियत, और वो हमें स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। आइडियली तो ये होना चाहिए कि चीज़ इंपोर्ट ही ना करें, यहाँ से चीज़ प्रोड्यूस करें और उसको एक्सपोर्ट करें। लेकिन इंपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट जो है उसमें कम से कम कुछ तो चेंज करें। ये तो नहीं कि सब स्टिकर चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, पूरा अपना नाम लगा दिया। बिलाल शरीफ ने कहा कि इस शोबे से बराह रास्त 30 लाख अफराद का रोजगार वाबस्ता है। इस वक्त हमारी बरामदात का 55% हिस्सा टेक्सटाइल का है। इसमें टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील तालिबे इल्मों के लिए शोबे में बहुत से मौके मौजूद हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की क़यादत में मार्की मालिकान की डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की क़यादत में मार्की मालिकान ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख से मुलाकात की। मार्की मालिकान ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मार्की मालिकान ने रात 10 बजे की बजाय 10:30 तक क्लोजिंग का वक्त मांगा। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ने कहा कि उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर हमारे मुतालबात हुकूमत पंजाब तक पहुँचाएंगे। डीसी साहब ने हमने मुतालबा ये किया है कि बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा डिशों में रिलीफ दे दें और टाइमिंग में रिलीफ दे दें। उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि जो भी हमारी तजवीज़ हैं वो अपना वज़ीर आला पंजाब से वो भेज देंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारी डिमांड है, जो हमारी जायज़ मेरिट की बात है वो ज़रूर मनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का कानून के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी रखने का अंदिया। बोले इंतजामिया सिंगल डिश के खिलाफ वर्जी और वक्त की पाबंदी ना करने वालों को कोई रिलीफ नहीं दे सकती। मार्की मालिकान का कहना था कि जो बुकिंग पहले हो चुकी है इस पर हमें 1 माह का वक्त दिया जाए ताकि मुश्किलात से बचा जा सके। हमने उनको कहा कि थोड़ा बहुत टाइमिंग में रिलीफ दें, कुछ बारात लेट हो जाती है, कोई और कई वजूहत हो जाती हैं, तो उन्होंने वादा किया कि मैं जी लाहौर बात करता हूँ वज़ीर आला से,
तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मार्की मालकान ने लागू कवानीन पर अमल दरामद के अज़म का इजहार किया। मुलाकात में साबिक MP राना अली अब्बास खां और सदर सुप्रीम ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप चौधरी मोहम्मद अरशद व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया ने बाग़े जिना से नजरें फेर ली। झूले टूट फूट का शिकार, जगह जगह गंदगी के ढेर, मखसूस अफराद के लिए बनाए गए हिस्से पर ताला लग गया। फैसलाबाद का बागे जना बच्चों को मायूस करने लगा। सैरो तफरीह के लिए आने वाले बच्चों को झूले लेने में दुश्वारी। इंतजामिया ने टूटे फूटे झूले मुरम्मत न कराए। बागे जना में मखसूस अफराद के लिए बनाया गया हिस्सा भी बंद। खवातीन कहती हैं इंतजामिया लंबी तान कर सो गई कि काफी ज्यादा झूले टूटे हुए हैं, काफी झूलों की चेन्स टूटी हुई हैं और काफ़ी झूले जो वो तोड़ फोड़ का शिकार है। कहा कि बच्चे ऊपर से स्विंग वगैरह करें तो उनको चोट लग सकती है। ये जो स्पेशली जो बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है उसे लॉक लगा हुआ है, वो बच्चे उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे वहाँ जाके। शहरियों का कहना है झूलों की मुरम्मत करवाई जाए ताकि बच्चे तफरीह हासिल कर सकें। पार्क में जगह जगह पड़े कूड़े के ढेर भी उठाने का मुतालबा। फैसलाबाद का मेन पार्क है कंपनी पार्क, यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, आज हम भी हैं और देखकर बहुत अफसोस हुआ है कि यहाँ पे जगह जगह गंदगी है और झूले भी काफ़ी रेनोवेशन होने वाली है इनकी। शहरियों ने हुकूमत और जिली इंतजामिया से बागे जनाह की तरफ तवज्जो की अपील की है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद का नेरवाला रोड जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। जवाद क्लब चौक गंदे नाले के मकाम पर रोड में गड़ा पड़ गया, गड़े के तरफ से सड़क भी बैठने लगी। शहर की अहम तरीन नड़वाला रोड शदीद खस्ता हाली का शिकार। जवाद क्लब चौक गंदे नाले के मकाम पर सड़क में बड़ा गड़ा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात का खदशा बढ़ गया। 2 माह से गड़े की मरम्मत नहीं हो सकी। अहले इलाका की दुहाइयां। यहाँ पे इंतजामिया सोई हुई है, कोई जहाँ पे जो ना गौर नहीं कर रहा है, वहाँ पे हर रोज इधर जो है ना एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है इंतजामिया से कि जल्द देखे, आपका कैमरामैन जो दिखा सके तो देखे। सड़क की बर वक्त तामीर और मुरम्मत न होने से सुल्तान टाउन, चकेरा, नड़वाला बंगला, अमीनपुर बंगला समेत कई अहम इलाकों का फैसलाबाद सिटी से राब्ता मुनक़ते होने का अंदेशा पैदा हो गया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद।